ضلع کرم کے علاقہ بالش خیل میں تنازع نے زمین خون سے رنگ دی۔ دو قبائل کے درمیان جھڑپوں میں 14 زندگیاں چلی گئیں۔ جھڑپوں کا سلسلہ 5 روز سے جاری ہے۔ جھڑپیں رکوانے کے لیے مذاکرات بھی ناکام ہو گئے۔ ضلع کرم میں زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے 14 قتل جبکہ 40 زخمی ہو گئے۔ زمین کے ٹکڑے نے زمین خون سے رنگ دی۔ لوور کرم کے علاقہ پالش خیل اور ابراہیم زائی کے علاقے میں دو قبائل کے درمیان زمین کے تنازع پر 5 روز قبل لڑائی شروع ہوئی۔ پہاڑا چمکنی قبائل نے پالش خیل اور ابراہیم زائی قبائل پر فائرنگ کی اور خودکار ہتھیار سے حملے کیے۔ خون ریز تصادم کے حوالے سے ضلع کرم کے رکن قومی اسمبلی ساجد حسین توری اور MP سید اقبال میاں کہتے ہیں کہ قبائلی عمائدین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کوششوں کے بعد فریقین کو فائر بندی پر رضامند کر لیا گیا تھا، لیکن پہاڑا چمکنی قبائل کی طرف سے دوبارہ حملے شروع کر دیے گئے۔ اتنے مسئلے ان کا حل جلدی فیصلہ ہے کہ بر وقت فیصلہ ہو اور یہ لڑائی کی صورت میں سامنے نہ آئے، تو امید ہے کہ آگے ایڈمنسٹریشن جو ہے اس سے سبق لے گی اور اس سمیت باقی فیصلے بھی جلد کرے گی۔ یہ کرم جو ہے نا، یہ ہم سب کا گھر ہے اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو، اور امن جو ہے نا اس میں سب کا کردار ہونا چاہیے، مطلب یوتھ سے لے کر مشران تک۔ جھڑپوں کے باعث پارا چنار پشاور مین شاہراہ ہر قسم کے آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی تھی۔ فائرنگ کی زد میں آ کر بجلی کی سپلائی لائن کی تاریں ٹوٹنے سے پارا چنار سمیت اپر کرم میں بجلی منقطع ہو گئی۔ وابڈہ حکام کا کہنا ہے کہ فائر بندی کے بعد بجلی کی بحالی کا کام شروع کیا جائے گا، جبکہ 5 روز سے قبائلی عوام حکومت کے ایکشن کے منتظر ہیں۔ ملتان میں کبوتر بازوں نے ہوائی فائرنگ کر کے قانون کی دھجیاں اڑا دی، شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی۔ کبوتر بازوں کی سرعام ہوائی فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ پولیس ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکی۔ کبوتر باز شہریوں کی زندگی کے ساتھ کھیلنے لگے۔ ملتان میں کبوتر بازوں نے لوگوں کی زندگیاں بھی داؤ پر لگا دی۔ پابندی کے باوجود نوجوان کی ہوائی فائرنگ معمول بن چکی۔ ہلڑ بازی سے گرد نواح کے مکینوں کی زندگیاں بھی عذاب بن گئیں۔ ہوائی فائرنگ ہلڑ بازی کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس میں ملزمان کو فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ کبوتر بازوں کی ہوائی فائرنگ سے علاقے کے مکینوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ملتان پولیس ملزمان کے خلاف کارروائی سے گریزاں ہے۔ جھنگ کی تحصیل احمد پور سیال میں یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا اور چینی نایاب ہو گئی۔ شہری مہنگے داموں مارکیٹ سے خریدنے پر مجبور ہیں۔ رپورٹ کریں گے تصور عباس۔ احمد پور سیال کے یوٹیلیٹی سٹور پر آٹا اور چینی کا مصنوعی بحران شدت اختیار کر گیا۔ احمد پور سیال عدالتی احکامات کے بعد بھی چینی 70 روپے کلو نہیں مل رہی۔ شہری چینی 80 روپے فی کلو خریدنے پر مجبور ہے۔ انتظامیہ ان منافع خوروں کو لگام ڈالنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا حکومت کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹور کو اربوں روپے کی سبسڈی تو دی جاتی ہے، لیکن سبسڈی کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ رہے، تو سبسڈی دینے کا کیا فائدہ؟ تو عام مارکیٹ میں چلے جائیں تو وہاں 80 روپے سے کم نہیں چینی دی رہی ہے۔ اگر کسی دکاندار سے کہا جاتا ہے کہ 70 روپے کے حساب سے چینی مل رہی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہے، لینی ہے تو جائیں، ادروائز چینی ہم دیتے ہی نہیں ہیں۔ چینی نہیں مل رہی تھی اور موجودہ اس وقت بھی نہیں مل رہی، اور جو بازار کا حال مارکیٹ کا تو وہ سب جانتے ہیں۔ 70 روپے کا بورڈ اویزا ہے، لیکن 80 اور 82 روپے کے ریٹ سے سیل کی جا رہی ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور پر چینی اور آٹے کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کی مشکلات کم ہو سکیں۔ کیمرہ مین واسد اقبال کے ساتھ تصور عباس، سچ ٹی وی، احمد پور سیال۔ دادو سے لاڑکانہ جانے والی مین سڑک کا تعمیراتی کام 2 سال سے التوا کا شکار ہے۔ ٹھیکیدار رفو چکر ہو گیا، جس کے باعث مسافروں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ شعیب تھہیم کی رپورٹ۔ دادو میں سال 2018 میں خستہ حال سڑکوں کی تعمیر کے لیے ٹینڈر ہوا، جس میں لاڑکانہ جانے والی سڑک کی تعمیر کے لیے کروڑوں روپے کا بجٹ بھی ریلیز ہوا، مگر 2 سال گزر جانے کے باوجود خستہ حال سڑک کی تعمیر نہیں ہو سکی۔ ٹھیکیدار کام ادھورا چھوڑ کر رفو چکر ہو گیا ہے، جس کے باعث مسافر گاڑیوں کو آمد رفت میں شدید مشکلات درپیش ہیں۔ گاڑیوں کا ستیہ ناش ہو گیا ہے، ہمارے کوئی مین مسئلہ ہے یا ایکسیڈنٹ کا مسئلہ ہے، بہت سے مسئلے ہیں۔ روڈ کی وجہ سے ہمیں کوئی فیسلٹی نہیں، گاڑیاں کوئی ڈیلی پنچر گاڑیاں ہو رہی ہیں۔ اس سڑک سے روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں گزرتی ہیں۔ سڑک کا تعمیراتی کام مکمل نہ ہونے کے باعث منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ گاڑیوں کا بیڑا گرک گیا، لیکن سندھ میں کہیں بھی آپ جاؤ سارا یہی ہے شرح، پھر بولتے ہیں دوسرے پیسے کھا کے، کام تو خود کرتے نہیں ہو۔ کمیشنوں کے چکر میں سارے MP میں نے 2 سال کے مابین کوئی بھی کام نہیں ہوا ہے، صرف پتھر بچھا کر چلے گئے ہیں۔ یہاں لانکڑا روڈ کی لنک کے اور لانکڑا روڈ کے جو ہے نا لنک میں جو سسٹم ہے وہ آنے جانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔
लाड़काना जाने वाली सड़क की तामीर के लिए करोड़ों रुपया बजट करप्शन की नजर हो गया है, जबकि सड़क खस्ता हाल होने की वजह से रोड हादसा भी मामूल बन गए हैं। दादू के शहरियों ने मुतालबा करते हुए कहा कि लाड़काना रोड की तामीराती काम जल्द मुकम्मल करके अवाम से बेचैनी दूर की जाए। आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर कहते हैं कि एडिशनल आईजी इनाम गनी जनूबी पंजाब में अवामी खिदमत के लिए बेहतरीन सेटअप को परवान चढ़ाएंगे। आईजी पंजाब की जानिब से लाहौर में एडिशनल आईजी इनाम गनी के एजाज में अलविदाई तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें तमाम एडिशनल आईजीज, डीआईजीज समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। डीआईजी पंजाब ने एडिशनल आईजी साउथ पंजाब तैनात होने पर इनाम गनी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उनका कहना था कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इंतहाई प्रोफेशनल स्टाफ अफसर की कमी महसूस करूंगा। इनाम गनी हुकूमती और अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की भरपूर सलाहियत रखते हैं और जनूबी पंजाब में अवामी खिदमत के लिए बेहतरीन सेटअप को परवान चढ़ाएंगे। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि पुलिस ऑफिस से हर मुमकिन सपोर्ट फराहम की जाएगी। इस मौका पर इनाम गनी ने आईजी पंजाब समेत तमाम अफसरान का शुक्रिया अदा करते हुए बतौर एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब तैनाती हुकूमत और महकमे का मेरी सलाहियतों पर एतमाद का मजहर है। जनूबी पंजाब के अवाम की खिदमत और तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए भरपूर मेहनत करेंगे। लुधियाना में एसओपीज पर अमल न करने पर जिले इंतजामिया ने दर्जनों दुकानें सील कर दी। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर लुधियाना सदर हसन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर तिमरगरा शाह जमील खान ने स्मार्ट लॉकडाउन एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करते हुए तिमरगरा बाजार में दर्जनों दुकानों को सील करके जुर्माना कर दिया। स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर तिमरगरा शाह जमील खान ने तिमरगर के मुख्तलिफ मार्केट शॉपिंग सेंटर का दौरा किया। गवर्नमेंट की तरफ से जो डायरेक्शन हमें मिले हुए एसओपी के लिहाज से और ख़ास तौर पर सैटरडे एंड संडे मुकम्मल लॉकडाउन के लिहाज से, तो इस बारे में हम निकले हुए हैं। जितने भी दुकानदार है तो मेजॉरिटी बंद है, बड़े बड़े मार्केट बंद है, लेकिन बाज़ ऐसे है कि उसने वायलेशन किए, उसने दुकान खोल दिए, तो इसके खिलाफ हमने मुहिम शुरू किया हुआ है। उसके खिलाफ आज हमने काफ़ी दुकानों को बंद भी किया और उनके खिलाफ FIR भी चेकआउट किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर लुधियाना शाह जमील खान का कहना था कि कोरोना वबा के सद्भाव के लिए हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया है। असिस्टेंट कमिश्नर तिमरगर शाह जमील साहब ने तिमरगरा बाजार में अचानक छापा मारा और एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों को मौका पर जुर्माना किया और कई दुकानें मौका पर सील कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाती, तिमरगरा, लुधियाना। कोरोना वायरस से बचाव के बारे में वफाकी वज़ारत इत्तलात और नशरियात की आगाही प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। राजा साकिब की रिपोर्ट। चकवाल में वफाकी वज़ारत इत्तलात और नशरियात की आगाही कोरोना वायरस प्रोग्राम खैरख्वाह की टीम ने चकवाल में जगह जगह जाकर लोगों में कोरोना से बचाव और एहतियात के बारे में आगाही दे रहे हैं और लोगों में आगाही पफलेट तकसीम कर रहे हैं और दीवारों पर आगाही पोस्टर भी आवेजा कर रहे हैं। जो बेसिक हमारा मकसद है कि जो मौजूदा सूरत हाल है कोरोना वायरस की, उससे कैसे हम महफूज रह सकते हैं और दूसरों को हम कैसे महफूज हमने करना है। तो हम अवेयरनेस का पैगाम ये गली गली मार्केट्स में डॉक्टर के पास हर शोबा जो ज़िंदगी है उनके पास जाके उनको बताते हैं। चकवाल में भी आज ये टीम हमारे पास पहुंची है खैरखा की और इन्होंने बहुत अच्छी आगाही दी है और ज़्यादातर लोगों के ज़हनों में जो कोरोना के हवाले से गलत असर है उसको इन्होंने दूर किया है। खैरख्वाह टीम चकवाल जिस तरह गली मोहल्लों दुकानों और दीगर जगहों पर जाकर आवाम में कोरोना वायरस से बचाव के बारे में आगाही दे रहे हैं, आवाम को भी चाहिए कि वो इनकी बातों पर अमल करें और खुद को और अपने दूसरों को भी कोरोना से महफूज रखें। कैमरामैन शाहजेब के साथ रजा साकिब अब्बास, सच न्यूज़ चकवाल। रेमयार खान की तहसील खानपुर में कोरोना वायरस से बचाव से मुताल्लिक शहरियों को आगाही देने के लिए वॉक का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट करेंगे जहांजेब खान। असिस्टेंट कमिश्नर मलक फारूक अहमद, MPA मियां शफी मोहम्मद और मेंबर हेल्थ काउंसिल चौधरी तनवीर की जेर सदारत असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में टाइगर फोर्स के जवानों के साथ मीटिंग की गई और वॉक की गई। टाइगर फोर्स के जवानों की पहचान के लिए इनमें प्रिंटेड फेस मास्क और टाइगर फोर्स के स्टिकर तकसीम किए गए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मलक फारूक अहमद ने बताया कि इस मीटिंग का मकसद हमारे पास टाइगर फोर्स के 5000 लोग मौजूद हैं, लेकिन हमने इनमें से रिस्पॉन्ड किया कौन से लोग सही काम कर रहे हैं जो फील्ड में नजर आ रहे हैं और जो लॉकडाउन के SOPs पर अमल दरामद करवा रहे हैं। हमारे पास कोरोना टाइगर्स के 5000 से मैक्सिमम लोग थे जो रजिस्टर्ड थे, लेकिन हमने स्क्रीन आउट किया ऐसे लोग कौन से लोग हैं जो सही हमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो फील्ड में नज़र आ रहे हैं, जो हमारी लॉकडाउन की SOPs हैं उस पर अमल दरामद करवा रहे हैं। तो उसमें से कोई 100 या 120 लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं, हम जब भी बुलाते हैं वो आ जाते हैं। तो उनमें से हम 20-20 को करके बुला रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहले उनका मसला था आइडेंटिफिकेशन का। वो वहाँ जाते फील्ड में तो लोग उनकी बात सुनने को कायल नहीं होते थे। आज हमने गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोवाइड किए गए थे फेस मास्क और बैजेस उनको दे दिए हैं।
MPA मियां शफी मोहम्मद ने कहा कि टाइगर फोर्स मसाजिदों और जनाजों में भी SOPs पर अमल दरामद करवाएं, लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। से मैंने भी रिक्वेस्ट की, एसी साहब ने भी इनको फरमाया कि अपनी मसाजिद में और पब्लिक प्लेसेस पे, गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो लॉकडाउन की SOPs हैं उन पे ये अमल कराएं और वहाँ देखें किसी से ज़्यादती ना हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि हमारी गवर्नमेंट ने और असम्बली में इस दफ़ा शोर मचा काफ़ी कि जनाजों में कोरोना के हवाले से जो डेथ्स हुई थी उसमें जनाजे नहीं हो रहे थे बड़े, तो लोग अपने प्यारों के जनाजों में जाना चाहते हैं, उसकी SOP चेंज हो गई है, लोग जनाजों में जा सकते हैं। जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं वहाँ भी बर वक्त पहुँच कर इनके मसाइल हल करें। कैमरामैन टीम के साथ जहांज़ेब खान, सच न्यूज़, खानपुर। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक साहिवाल में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के प्लानिंग ब्रांच को वन विंडो ई खिदमत सेंटर के साथ ऑनलाइन कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की प्लानिंग ब्रांच को वन विंडो ई खिदमत सेंटर में ऑनलाइन कर दिया गया। इसका मकसद अवामुन नास को एक ही जगह पर सहूलियत मुयसर करना और अब ई खिदमत सेंटर में ऑनलाइन नक्शाजात, हाउसिंग स्कीम्स, लैंड सब डिवीजन स्कीम, कमर्शलाइजेशन सर्टिफिकेट वगैरह की दरख्वास्त दी जा सकेगी। ई खिदमत सेंटर में तमाम सर्विस की चेक लिस्ट तैयार कर ली गई है जो कि खिदमत सेंटर में मौजूद होंगी, जो कि हर आने वाले साइल को फराहम की जाएंगी और इसी के मुताबिक फाइल को ई खिदमत सेंटर में जमा किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है उस पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हमें जो हदायत जारी की गई हैं कि बिल्डिंग प्लान और हाउसिंग सोसाइटी की अप्रूवल जो है विद इन स्पेसिफिक टाइमलाइन जो प्रोवाइड किया गया उसके मुताबिक दी जाए और हर मुतलका साइल को बजरिया SMS इसकी फाइल के स्टेटस के बारे में मतला किया जाएगा। आज 1 जुलाई से हमने खिदमत मरकज़ में बाकायदा वन विंडो का आगाज़ कर दिया है। कंस्ट्रक्शन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के विजन के मुताबिक हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न की ज़ेर निगरानी ये खुद उसको वॉच कर रहे हैं। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने आज से अपने तमाम ई खिदमत मराकज़ जो कि पूरे पंजाब में वाक़ हैं उनके थ्रू कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की तमाम सर्विसेज का आगाज़ कर दिया है, तो जो कि पब्लिक के लिए बहुत खुशाइंद बात है। पब्लिक को विद इन प्री डिफाइंड टाइम पीरियड पब्लिक को सर्विस मिलेगी। हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक कंप्लीशन सर्टिफिकेट 30 यौम के अंदर, कमर्शलाइजेशन सर्टिफिकेट को 40 यौम और हाउसिंग स्कीम 75 यौम के अंदर अंदर मंजूर करना होगी। मलिक इत्शाम अली, सच न्यूज़, साहिवाल। पाकपतन की तहसील आरिफवाला में दावत इस्लामी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। दावत इस्लामी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम फैजान मदीना में थैलेसीमिया और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें शहर भर से मुतअद्दिद अफराद ने खून की एहतियात जमा करवाए। थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह शहर से और दीगर अतराफ से जोक दर जोक लोग शिरकत कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों के हिसाब से बोतलें अब तक जमा हो चुकी हैं। आशिकान रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी जहां दुनिया भर के अंदर नेकी की दावत आम कर रही है, वहीं पर दावत इस्लामी वेलफेयर का काम भी कर रही है। ब्लड डोनेशन कैंप दावत इस्लामी ने थैलेसीमिया के मरीजों के लिए पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कायम के 102 शहरों में 25,000 बोतलों का एहतिमाम किया। आज आरिफवाला में जारी है, इंशाल्लाह 10 बजे तक ये सिलसिला जारी है। लॉकडाउन के दौरान दावत इस्लामी के तहत अब तक पाकिस्तान भर के 100 से ज्यादा शहरों में खून के एहतियात जमा करने के लिए कैंप लगाए गए, जहां पर अब तक 25,000 से ज्यादा अफराद खून के एहतियात जमा करवा चुके हैं। लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, तो इन मरीजों के लिए खून इकट्ठा करना इंतहाई मुश्किल था। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज जो मेजर सोर्स हैं वो बंद थे, तो ये उनके एक ऐलान पे इतने ज़्यादा इस्लामी भाई जो हैं वो मतलब इतनी गर्मी का भी उन्होंने एहसास नहीं किया, निकले हैं एक इसार का जज्बा लेके। हमारी तरफ से उनको सलूट है जी, बहुत बड़ी काबिज है, अल्लाह ताला इनको जज़ा दे। कैंप इंतजामिया का कहना है कि लॉकडाउन के बायस खून न मिलने पर थैलेसीमिया के मरीजों को खून की फ्राहमी को यकीनी बनाना है। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफवाला। लोधरा में मोटरवे पुलिस का एहसन इकदाम, सफेद पोश तबके को अशियाए जरूरिया की फराहमी के लिए दीवार फला मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। काजिम अब्बास की रिपोर्ट। मोटर पुलिस बीट नंबर 20 के DSP सैयद रिजवान शाह की सरबराही में मोटर पुलिस का आसान और काबिल तारीफ इक़दाम। मोटर पुलिस बीट नंबर 20 के DSP सैयद रिजवान शाह की सरबराही में मोटर पुलिस ने जरूरतमंद मुस्तहिक सफेद पोश तबके को अशिया जरूरिया की फराहमी के लिए मोटर पुलिस बीट नंबर 20 के ऑफिस के सामने दीवार फलाह मंसूबे का क्याम कर दिया। मुखैर हजरात के तामन से दीवार फलाह मंसूबे के तहत जरूरतमंद मुस्तहिक सफेद पोश तबके के लिए मुख्तलिफ अशिया जरूरिया भी रख दी गई। दीवार फलाह मंसूबे में मुसाफिरों को पीने के लिए
लिए वाटर फिल्ट्रेशन कूलर भी लगा दिया गया है, जैसे मुसाफिर अपनी प्यास बुझा सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी और मोटर पुलिस मुल्तान के सेक्टर कमांडर एसपी चौधरी नदीम अशरफ वड़ैत ने दीवार फलाह मंसूबे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मोटर पुलिस बीट नंबर 20 के डीएसपी सैयद रिजवान शाह, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका समेत मोटर पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर लोधरा इमरान कुरैशी और मोटर पुलिस मुल्तान के सेक्टर कमांडर एसपी चौधरी नदीम अशरफ वड़ैत ने मोटर पुलिस बीट नंबर 20 के डीएसपी सैयद रिजवान शाह की सरबराही में मोटर पुलिस की जानिब से किए जाने वाले आसान इक़दाम को सराहते हुए कहा कि मोटर पुलिस बीट नंबर 20 का अवामी फलाह के लिए अहम किरदार है। जरूरतमंदों के लिए यह मनसूबा संगे मील की हैसियत रखता है। दीवार फलाह मनसूबे के क़याम से जरूरतमंद मुस्तहिक सफेद पोश तबके की जरूरियात पूरी हो जाएंगी। जरूरतमंद मुस्तहिक सफेद पोश तबके का बरम पोशीदा रखने के लिए यह मनसूबा खिदमत खलक से कम नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि जरूरतमंद मुस्तहिक सफेद पोश तबके की जरूरियात को पूरा करने के लिए दीवार फलाह मनसूबे के क़याम में मोटर पुलिस बीट नंबर 20 के डीएसपी सैयद रिजवान शाह का कलीदी किरदार है। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काज़म अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, साची न्यूज़, लोधरा। टांक में साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन के इंतकाल पर ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। आदम खान की रिपोर्ट। सैयद मुनव्वर हसन साबिक अमीर जमात इस्लामी के इंतकाल पर यौमी ताज़ियती रेफरेंस मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत पीर सबीर शाह जिले अमीर जमात इस्लामी टांक ने की। सैयद मुनव्वर हसन साहब ने अपनी जिंदगी की सियासत का जो आगाज जो स्टूडेंट लाइफ से किया, और ये कहा जाता है कि स्टूडेंट तंजीमें सियासतदानों की नर्सरी हुआ करती है, और जो सियासतदान इस नर्सरी से गुजर कर बनता है वो एक मंजा हुआ सियासतदान होता है। और मैं आपको बताता चलूं कि सैयद मुनव्वर हसन सीनियर सियासतदान भी थे, एक मंजे हुए जो सियासतदान थे। आपको ये भी पता है कि कितने दहरिया लोग, कितने खुदा और रसूल के वजूद के मुनकिर लोग, कितने बेदीन लोग मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का लिटरेचर पढ़ के वो इस्लाम में दाखिल हुए हैं कि ये खूबियां भी आपको मालूम है। ताज़ियती रेफरेंस के इख्तिताम पर सैयद मुनव्वर हसन के इसाले सवाब के लिए दुआ की गई। कैमरामैन शाहिद वेंस के साथ आदम खान कुंडी, टांक। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी और हब्स का राज, शहरियों की नजरें अपने रहमत की तलाश में आसमान की जानिब हैं। हाय रे गर्मी, सुबह होते ही सूरज का पारा हाई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क़यामत खेज गर्मी, सूरज का मिजाज बरहम होने से मौसम की शिद्दत में इजाफा। सिंध के मैदानी इलाके तंदूर बने हुए हैं। आज दादू और मोहनजोदड़ो में पारा फिर 47 तक जाने का इम्कान है। लाड़काना, सखर, जैकबाबाद के इलाके भी तपते रहेंगे। सहराए थार में क़यामत खेज गर्मी की तवील लहर के बाद गुज़श्ता रात बारिश हुई। नंगर पारकर, छाछरो, मिठी समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की और तेज बारिश से मुरझाए चेहरे खिल उठे। पंजाब के छोटे बड़े शहरों में भी सूरज आग बरसा रहा है। लाहौर में आज भी दर्जा हरारत 42 की हद अबूर कर सकता है। फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा और भक्कर में भी शदीद गर्मी है। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत और सिबी में भी मौसम गर्म रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आज बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब, मशरकी बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान के सबसे पहले तवील कामत शख्स आलम चन्ना को बिछड़े 22 बरस बीत गए। दुनिया की सबसे तवील कामत शख्स मोहम्मद आलम चन्ना 1956 में सिंध के तारीखी शहर सेवन में एक किसान महराब चन्ना के घर पैदा हुए। बचपन ही से उनका कद आम इंसानों के मुकाबले में गैर मामूली तौर पर बढ़ता रहा। 11 बहन भाइयों में उनके तमाम बहन भाइयों का कद नॉर्मल था। एक लिहाज से ये पाकिस्तान के पहले लंबे तरीन फर्द हैं। 1981 में दुनिया के सबसे लंबे इंसान डॉन कोलर के इंतकाल के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इन्हें दुनिया का सबसे लंबा इंसान तस्लीम किया। मोहम्मद आलम चन्ना ने अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, जापान, मुत्तहदा अरब अमारात समेत दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक का दौरा किया। उनमें से बेशतर ममालिक ने उन्हें अपने मुल्क की शरीयत देने की पेशकश भी की, जिसे उन्होंने पाकिस्तान की मोहब्बत के बायस ठुकरा दिया। उन्हें दुनिया भर से 300 से ज्यादा अवार्ड्स और एजाज़ात से नवाजा गया। 1998 में जब वो गुर्दों की बीमारी के बायस शदीद बीमार पड़े तो वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की हिदायत पर उन्हें इलाज के लिए अमेरिका ले जाया गया, मगर वो जांबर न हो सके और 2 जुलाई 1998 को न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में वफात पा गए। उनकी मैयत को पाकिस्तान लाया गया। वो सेवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के शहर में आसूदे खाक हैं। दुनिया के सबसे बड़े तिजारती रास्ते पर वाक़ बलूचिस्तान के जिला गवादर में कायम गहरी तरीन बंदरगाह मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए संगमील साबित हो रही है। अब्दुल गनी, जहाँ चीन को सालाना 20 अरब डॉलर से जायद की बचत होगी, वहीं पाकिस्तान को भी अरबों डॉलर्स का ज़र मुबादला हासिल होगा। इक्तिसादी माहिरीन के बकौल गवादर पोर्ट पर वस्त एशियाई रियासतों को अगर सहूलियात मुहैया की जाएं तो कौमी आमदन में भी 40 अरब डॉलर से जायद इजाफा किया जा सकता है।
गवादर पोर्ट पर बहरी जहाजों के लंगर अंदाज होने के लिए 120 से जायद बर्थ्स हैं। इस पोर्ट से 45 दिन की मुसाफत 10 यूम में मुकम्मल हो जाती है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा जहां दिगर कई हवालों से पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए संगे मील साबित हो रहा है, वही इस मंसूबे से 2 लाख से जायद अफराद को रोजगार के मौके भी मुयसर आ रहे हैं। इस अजीम मंसूबे का एक और अहम पहलू ये भी है कि 35 अरब डॉलर्स की खतीर रकम मुल्क में तवानाई के मंसूबों पर खर्च की जा रही है, जिससे मुल्क में तवानाई के बहरान का खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। माहिरीन कहते हैं कि गवादर पोर्ट अपनी बेपनाह जोग्राफियाई अहमियत की बदौलत खित्ते में मुआशी तरक्की और सलामती की भी जामिन है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी कांकर, सच न्यूज, कोयटा। आजाद कश्मीर के खूबसूरत तरीन सयाहती मकाम शहीद गली में हुकूमत और मुताल्लिका इदारों की नाअहली की वजह से सयाहती सरगर्मियां खत्म होकर रह गईं। यूं तो कोरोना वायरस से तमाम सनती सरगर्मियां शदीद मुतासर हैं, लेकिन आजाद कश्मीर में सयाहत का शोबा इस आलमी वबा से शदीद मुतासर हुआ है। दारुल हुकूमत से 20 मिनट की मुसाफत पर मौजूद शहीद गली अपनी खूबसूरती की मिसाल आप है, लेकिन हुकूमत वक्त और मुतल्लिका महकमा जात की नाअहली की वजह से इस खूबसूरत इलाके में सयाहती सरगर्मियां न होने के बराबर हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी मुनासिब सहूलियात न होने की वजह से यहाँ आने वाले सयाहों के साथ साथ आम आवाम भी शदीद मुश्किलात का शिकार है। छोटी छोटी बारिश का भी मूड बना हुआ है, काफी अच्छी जगह है और यहाँ पे ये रोड का थोड़ा प्रॉब्लम है, वरना हमें और एंजॉयमेंट करने को ज्यादा मिलता है। सयाहों की जन्नत शहीद गली का शुमार इन सियाहती मुकामात में किया जाता है, जिन पर बहुत कम सरमायाकारी करके बेपनाह फवायद हासिल किए जा सकते हैं। एंजॉय तो किया, लेकिन जिस सड़क से है देखा जाए सड़क की हालत बिल्कुल खराब है, तो हुकूमत को ये चाहिए कि इसकी जरा कंस्ट्रक्शन कर दें। आजाद कश्मीर के खूबसूरत तरीन मकामात देखने वालों को मुतासर करने की बेपनाह सलाहियत रखते हैं, लेकिन हुकूमत वक्त और महकमा सयाहत आजाद कश्मीर इस खूबसूरती को दुनिया के सामने लाने में ताहार नाकाम नजर आता है। आजाद कश्मीर के खूबसूरत तरीन सियाती मुकाम शहीद गली कुदरत की फयादियों से माला माल है। अगर किसी चीज की कमी है तो वो मुनासिब सहूलियात और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की है, जिसकी वजह से सयाहों के साथ साथ मुकामी आबादी भी मुश्किलात का शिकार है। कैमरा टीम के साथ सैयद नदीम शाह, सच न्यूज, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। मुंज के बांध से तैयार चारपाइयों का इस्तेमाल आज भी पाकपतन में किया जाता है। चौधरी तारिक अली की रिपोर्ट। जदीद फर्नीचरों और सोफा सेटों के इस दौर में भी लोग मंज की बांध से तैयार हुई चारपाइयों का इस्तेमाल करते हैं। पाकपतन में इस मंज के बांध को मर्द और खवातीन अपने हाथों की मेहनत से ये बांध तैयार करते हैं। इस बांध को मुख्तलिफ मरहलों से गुजारने के साथ साथ आग के मराहिल से भी गुजारा जाता है, जिससे इसकी मजबूती में इजाफा होता है। ਜਿਹੜਾ ਬਾਨ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ और बड़ी देर तक इस्तेमाल हो जाता चारपाइयों से, इसलिए मैं इत्थे बाण खरीदने लिए आया हूँ। सन 82 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਣ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਚਲਾਈਆਂ ਵੀ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਾਣ ਵੱਟ ਰਹੇ ਆ पूरे पाकिस्तान ਵਿੱਚ। जदीद दौर में भी आज भी लोग इन कदीमी चारपाइयों की रवायत को बरकरार रखे हुए हैं। मंज के बांध से तैयार चारपाइयों का इस्तेमाल आज भी लोग सकाफत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कैमरा टीम के साथ चौधरी तारिक अली, सच टीवी, पाकपतन। पंजाब भर में सकाफती खेलों की रिवायात तेजी से दम तोड़ रही हैं। रिपोर्ट करेंगे राशिद हुसैन। यूँ तो पंजाब भर में बहुत से मकबूल खेल खेले जाते हैं, लेकिन पंजाब का सकाफती खेल थप्पड़ कबड्डी पंजाब भर में तेजी से दम तोड़ रहा है। हुकूमती अदम तवज्जोही के बाइस नौजवान नस्ल का रुझान सकाफती खेल से खत्म होता जा रहा है, जिसके बाइस नौजवान मुख्तलिफ किस्म की मुआशरती बुराइयों में मुब्तला हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से कबड्डी के मैदानों पर अदम तवज्जोही के बाइस कबड्डी के खिलाड़ी भी इस खेल में दिलचस्पी लेना छोड़ रहे हैं। कबड्डी हमारा तारीखी विरसा है, लेकिन अभी देखने में आया है कि ये बिल्कुल अब दम छोड़ चुकी है। इसके लिए ना तो अब खाड़े बिछाए जा रहे हैं और ना ही कोई गवर्नमेंट की तरफ से माली मुआवनत की जाती है। कबड्डी हमारा सकाफती खेल है, कबड्डी के टूर्नामेंट होने चाहिए, इसको गवर्नमेंट को इस पे तवज्जो देने चाहिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर निकलते नहीं हैं। हमें गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए, इस तरफ ग्राउंड में बात करनी चाहिए ताकि
पाकिस्तान की कौम मजबूत हो, नौजवान ताकतवर हो। थप्पड़ कबड्डी के मुकाबला जात को देखने के लिए लोग दूर दराज के इलाकों से सफर करके आते हैं। मौजूदा दौर में थप्पड़ कबड्डी जैसे सकाफती खेल से नौजवान नस्ल बिल्कुल ना आशना है, जिसके बाइस मुआशरे में मुख्तलिफ मसाइल जन्म ले रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ राशिद हुसैन, सच न्यूज, खानेवाल। मौसम गर्मा में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला फल फालसा जिगर के अमराज के लिए फायदा मंद है। उमर हयात की रिपोर्ट। शदीद गर्मी के मौसम में दीगर शहरों की तरह कच्चे खूब में भी खट्टे मीठे फालसे की मांग में इजाफा हो गया है। फालसा खुश जायका वो वाहिद फल है जिसके खाने से इंसानी जिस्म में ठंडक पैदा हो जाती है। कुदरत के अनमोल तोहफे में से फालसा भी एक खुश जायका फल और खूबसूरत तोहफा है। फालसा की फरोख्त में इजाफे के साथ साथ इसकी कीमत भी 200 रुपए तक पहुंच जाती है। फालसे की काश्त 6 माह के दौरान मुकम्मल तैयार हो जाती है। फालसे की फसल मुनाफा बख्श तो है, लेकिन इस पर काश्तकार को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। फालसा वो वाहिद बाग है जिस पर कोई बीमारी असर नहीं करती, इस पर कोई स्प्रे नहीं किया जाता, बहुत कम खाद दी जाती है और पानी भी बड़ा मुनासिब लगाया जाता है। बेचने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसकी मांग बहुत ज्यादा है। फालसा मार्केटों से आसानी दस्तयाब होता है और इसको खाने और इसका जूस पीने से इंसानी जिस्म तरोताजा रहता है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं फालसे का शरबत जिगर के अमराज के लिए बहुत फायदेमंद है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो हेपेटाइटिस में मुब्तला हैं और जो लोग मैदा अमराज के जुमला में और जरकान के जुमला अमराज में मुब्तला हैं, उनके लिए ये बहुत फायदा। रोजाना फालसे का इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों में बचा जा सकता है। फालसा एक ऐसा फल है जिसमें ग़िज़ाइयत की निस्बत दवाई खसूसियात ज्यादा पनाह है, इसलिए फालसा को मौसम गर्मा के मुख्तलिफ अवारजात के अजाला के लिए खाते और इसका मशरूब इस्तेमाल करते हैं। फालसा जितना छोटा और नन्हा सा फल है, इसके इतने इंसानी जिस्म पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं, लेकिन इसकी काश्त और चुनाई एक मुश्किल अमल है जिसको हमारे काश्तकार बड़ी मेहनत से मुकम्मल करते हैं। कैमरा टीम के साथ उमर हयात सऊद, सच न्यूज, कच्चा खूब। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही फैसलाबाद की तहसील समंदरी के शहरी ठंडी सरदाई से लुत्फअंदोज होने लगे। रिपोर्ट करेंगे शहबाज बद्दी। समंदरी में भी गर्मियों का मौसम शुरू होते ही ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ जाता है। खास तौर पर शहरी सरदाई से लुत्फअंदोज होते हुए नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि सरदाई पीने से ठंडक का एहसास होता है। शहरी मजेदार और ठंडी सरदाई पीने दूर दराज से आते हैं। शहरियों का कहना है सरदाई न सिर्फ सेहत अफजा मशरूब है बल्कि गर्मी की शिद्दत कम करने में भी खासा मुफीद साबित होता है। गर्मियों की सौगात सरदाई बनाने में बादाम, छोटी इलायची, काली मिर्च, खसखस और रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल किया जाता है। इसी हवाले से दुकानदारों का कहना था गर्मियों के मौसम में लगाए गए सरदाई के ये स्टॉल्स न सिर्फ शहरियों के लिए लुत्फअंदोज होने का बहाना है बल्कि दुकानदारों के लिए भी आमदन का बेहतरीन जरिया है। कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सच न्यूज, समंदरी। ट्रेन का सफर हमेशा से आरामदेह और सस्ता तस्वुर किया जाता है, मगर कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नजर कहरोड पक्का स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन अलफ्रीद एक्सप्रेस की बहाली ताहाल मुमकिन नहीं हो सकी, जिसकी वजह से शहर और गिरदोनवा के लोगों को मुश्किलात का सामना है। राव फखरुज्जमान से मजीद जानते हैं। जी फखरुज्जमान। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर जैसे ही लॉकडाउन का सिलसिला हुआ, मुल्क के दीगर शहरों की तरह कहरोड पक्का में भी ट्रेन को बंद कर दिया गया, मगर लॉकडाउन में नरमी होते ही दीगर शहरों में तो ट्रेन सर्विस शुरू हो गया, मगर कहरोड पक्का से गुजरने वाली वहद फरीद एक्सप्रेस ताहाल बहाल ना हो सकी, जिस वजह से शहरियों को सफरी सहूलियात में शदीद परेशानी का सामना है। मजीद इसी वाले से जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शहरी, उनसे जानेंगे कि उनको सफरी सहूलियात में ट्रेन बंद होने से किन मुश्किलात का सामना है। जी 3 माह हो गया जो है यहाँ पे फरीद एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया है। हमारी हुकूमत से अपील है कि मेहरबानी करें, बाकी शहरों में जो है ट्रेनें ओपन कर दी गई हैं, लेकिन अभी तक जो है हमारी ये कहरोड पक्का की फरीद एक्सप्रेस जो है इसको अभी नहीं जो है चालू किया गया। तो हमारी हुकूमत वक्त से अपील है, मेहरबानी करें, हमें बहुत परेशानी है। जो हम बसों पर सफ़र करते हैं उसमें एक तो हम थक जाते हैं, दूसरा हमारा टाइम बहुत ज़ाया होता है। ये जो है सफ़र एक तो बहुत ही मतलब है आसान और सस्ता है, जिसकी वजह से हमें मतलब है थकावट भी नहीं होती। जी शहरियों का यही कहना है कि ट्रेन सर्विस कहरोड पक्का से बंद होने की वजह से उन्हें शदीद परेशानी का सामना, और उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि फौरी दीगर शहरों की तरह कहरोड पक्का की से गुजरने वाली वहद फरीद एक्सप्रेस को भी बहाल किया जाए। शुक्रिया फखरुज्जमान। ओकाड़ा के इलाके शेरगढ़ के बासी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। जेरे जमीन पानी जहरीला होने की वजह से कई मूजी अमराज फूट रहे हैं। देखिए उसाम अली की रिपोर्ट। शेरगढ़ की अवाम पीने के साफ पानी को तरस गई। शेरगढ़ 50,000 से जायद की आबादी पर मुश्तमिल शहर है,
जिसकी अवाम पीने के साफ पानी से महरूम है। इतनी ज़्यादा आबादी के लिए सिर्फ ये वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट है और ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो कि मेंटेनेंस ना होने की वजह से महीने में 25 दिन बंद रहता है। ज़ेरे ज़मीन पानी जहरीला होने की वजह से कई मूजी बीमारियां फूट रही हैं, जिससे अवाम हेपेटाइटिस सी और मैदा की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ये शेरगढ़ में सिर्फ एक ही फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया। शेरगढ़ की आबादी का अगर अंदाज़ा लगाएं तो वो 30,000 से ज़्यादा है। ये एक मुकामी NGO की तरफ से लगाया गया, लेकिन इसकी मेंटेनेंस का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। महीने में मुश्किल यह है कि अगर ये एक हफ्ता चल जाए, अक्सर ये बंद पड़ा रहता है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि इलाका भर में 3 से 4 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएं ताकि यहाँ की आवाम सुकून का सांस ले सके। कैमरामैन सकलैन चौधरी के साथ उसामा अली जप्पा, सच न्यूज़, शेरगढ़। मेलसी सब्जी मंडी में सहूलियात का फुकतान है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। गंदगी और ताफुन से बीमारियां फैलने लगीं। मोहम्मद शरीफ की रिपोर्ट। मेलसी में मार्केट कमेटी की मुबैना नाअहली के बायस सब्जी मंडी में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं। गंदगी और ताफुन से बीमारियां फैलने लगी हैं। सब्जी मंडी में कारोबार ठप हो चुका है। किसान, व्यापारी और आहड़ती परेशान हाल हो गए हैं। अमला सफाई सब्जी मंडी से गायब हो चुका है। बारहा इंतजामिया को शिकायत की गई हैं पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई है। गंदगी और बदबू में इलाका मकीन जिंदगी गुजारने पर मजबूर नजर आते हैं। इसके अलावा सब्जी मंडी के इर्द गिर्द की रिहायशी आबादियों में भी बदबू से शहरी परेशान हाल हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानब मार्केट कमेटी के अफसरान ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। अमला सफाई घर बैठकर तनख्वाहें लेने लगा है। किसानों, व्यापारियों, राहतियों ने DC विहाड़ी और आला हुक्काम से फौरी नोट्स देकर इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद शरीफ पट्टू, सच TV, मेलसी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील चौक सरवर शहीद में आवारा कुत्तों की भरमार है। शहरियों को काटने के मुतादिद वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। चौधरी साजिद की रिपोर्ट। चौक सरवर शहीद के रंगपुर रोड मजर मार्केट में आवारा कुत्तों की भरमार है। आवारा कुत्ते दिन और रात गलियों बाजारों में घूमते नजर आते हैं। शहरियों को काटने के मुतअद्दिद वाकयात भी रूनुमा हो चुके हैं। आवारा कुत्ते कदीमी कब्रिस्तान में कब्रों की बेहुरमती करते हैं। मामूल के मुताबिक आमदरफ्त वालों और इलाका मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का सच न्यूज से बातचीत करते हुए कहना था कि आवारा कुत्तों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। इंतजामिया इस जानब तवज्जो दे। कुत्तियां दा बड़ा मसला ये लागे कब्रिस्तान आ ते कबरां शबरां पुੱਟਦੇ ਨੇ कुत्ते ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਗੁਜ਼ਰਦਾ उन्होंने भी पैंदे ने, छोटे बच्चों को पैंदे ने। बड़ा मसला बनाया हुआ है। यहाँ पे कुत्तों का भरमार है। साथ ही कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान की यहाँ पे कब्रों को खुदाई करते हैं। यहाँ पे कब्रिस्तान की जो हालत है बहुत खस्ता खाल हो चुके हैं। हमारे आला कम से ये गुजारिश है कि खुदारा म्यूनसिपल कमेटी से ये काम करवा ले और इन कुत्तों का भरमार जो है इनको खत्म कर दिया जाए। जी रात भी मैं इतों नंगिया कुत्ते पै गए ने। मैनू सब्जी लैके आने छोटे छोटे बच्चे ने स्कूल वाले उन्होंने तंग करते हैं। हम जब इधर से गुजरते हैं ये वारा कुत्ते हमको काट लेते हैं। कुछ सामान लेने जाते हैं शहर से, जब जाम पे भी इलाका मकीनों ने मुतअद्दिद बार आला काम को आगाह किया मगर इंतजामिया ने चुप साध रखी है। चौक सरवर शहीद के शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और असिस्टेंट कमिश्नर कोटदू से मुतालबा किया है कि आवारा कुत्तों की तलफी के लिए कोई मौसर इकदाम जो है वो किए जाएं ताकि शहरी सुकून के साथ अपनी जिंदगी जो है वो गुजार सकें। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज, चौक सरवर शहीद। भावलनगर के इलाके मिंचनाबाद में बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम हसन। मिंचनाबाद में वापडा एहलकारों की लापरवाही की वजह से शहर भर में पोल्स पर लगे बेहंगम मीटर्स और लटकती नंगी तारें शहरियों के लिए खतरात का बाइस बन चुकी हैं। बिजली की इन बसीदा और बेतरतीब तारों की वजह से बाजारों और घरों में शॉर्ट सर्किट से आतिशबाजी के बहुत से वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। तारा सारियां नीवियां ने, थले आंदियां पईयां ने, खंबे नाल टच हुंदियां पईयां हैगे ने। अगर कोई ना कोई उतो बारिशां दा मौसम है, कोई बच्चे खेडदे ने, कोई हादसा पेश आ गया, अल्लाह माफी देवे, इन्हां नूं तां करके ला दित्ते जाण। ये साडी रिक्वेस्ट है कि ये तारां भी सही कीतियां जाण, इन्हां दियां मीटर भी सही कीते जाण। शहर के मुतअद्दिद इलाके ऐसे भी हैं जहां पर बिजली की मेन तारें जमीन से चंद गज के फासले से गुजर रही हैं, जो किसी भी वक्त बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋੜ ਫੇਰ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੰਭਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਤੋਂ ਮੌਸਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਜੀ, ਖੰਭੇ 'ਚ ਕਰੰਟ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ मैं उन्होंने अपील करना कि मीटर सही जगह पे लाया जाए। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि इन पोल्स पर लगे बेहंगम मीटर्स और लटकती नंगी तारों को फिलफौर दुरुस्त करके शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। कैमरामैन जीशान के साथ नदीम हसन प्राचा, सच न्यूज़, मिंचनाबाद।
गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटद्दू में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे शहरी परेशान हैं। मोहम्मद इसहाक की रिपोर्ट। कोटद्दू शहर के मुख्तलिफ फीडर पर लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। सिटी, दारिया और ट्यूबवेल फीडर पर 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहने लगी। एक फीडर पर काम होता है और 4 फीडर ऐसे ही बंद कर दिए जाते हैं, जिससे बच्चों और मरीजों का शदीद गर्मी में घरों में रहना दुश्वार हो गया। शहरियों का कहना है कि पहले ही कोरोना की वजह से हमारे कारोबार नहीं रही, सही कसर वापडा ने लोड शेडिंग से पूरी कर दी। बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है, कारोबार मुतासर हैं, घरों में बच्चे बड़े बूढ़े सब परेशान होते हैं। 2 से 3 घंटे 4 घंटे तक लोड शेडिंग रहती है, दिन में रात में भी। सिटी फीडर तो अक्सर ही बंद रहता है, शहर में भी बंद है, कारोबार मुतासर है, बहुत ही परेशानी है लोड शेडिंग की वजह से। लोड शेडिंग की वजह से कारोबार मुतासर हो रहे हैं और कोरोना की वजह से 3 दिन का लॉकडाउन है, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल पेश आ रहे हैं। पेट्रोल की किल्लत हो गई है, 3 दिन लॉकडाउन और चौथा फिर ऊपर से लोड शेडिंग। जब शॉप पे आते हैं तो हाल आप देख सकते हैं हमारा क्या हाल होता है। हम दुकान के अंदर भी नहीं बैठ सकते, कारोबार कर सकते। तो बराए मेहरबानी हम इस लोड शेडिंग का कुछ हल ढूंढे। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस देकर बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद इसाक काजमी, सच न्यूज, कोटद्दू। ओकाड़ा की तहसील देपालपुर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे कारोबार ठप होकर रह गया। मजीद जानते हैं अयूब खबर से। जी अयूब। जी, दीपालपुर में शदीद गर्मी और हब्बस के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग का तवील सिलसिला जारी है। तो मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं सच न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई। जी बिल्कुल, बड़ी गर्मी बार तुसी देख लो आसमान ते सूरज किवें तपदा पिया। एक तो कारोबार नहीं है लॉकडाउन की वजह तो, दूसरा बत्ती की वजह तो बड़े परेशान आ। बगैर दसन तो लोड शेडिंग जनाब खुद ही की जा रहे हैं। तो मेहरबानी करनी चाहिए इमरान खान साहब नूं, हुकूमत नूं कि इस बारे कुछ सोचन ताकि आवाम भुखी तो मर रही है, गर्मी नाल तो ना मरे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जी लोहारा काम करना जी, बिजली नहीं है, कारोबार बंद है जी। तो मेहरबानी करके हुकूमत नूं कहा जाए कि लोड शेडिंग कम करे जी। साडे कारोबार की वजह तो बच्चे भुखे हैं जी, उन्होंने रोटी कितों खुआईए जी, दसो। ये मेहरबानी करके ते हुकूमत नूं कहो। जी, शहरियों को यही कहना है कि बिजली की तवील बंदिश की वजह से हमें कारोबार में भी बहुत सा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और हम रोजी रोटी से भी बड़े परेशान हैं। जी शुक्रिया अयूब। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी बल्दिया की ज़ेर सदारत शहर की सफाई और तजावुज़ात के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मरकजी अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। अरशद अली की रिपोर्ट। शहर में सफाई और तजावुज़ात के हवाले से म्यूनिसिपल कमेटी बल्दिया में इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसकी सदार चीफ ऑफिसर बल्दिया अब्तसामुल हक ने की। इजलास में मरकजी अंजुमन ताजरान हरूनाबाद के जनरल सेक्रेटरी मलक रियाज अहमद खिलजी, चौधरी मोहम्मद अफजल समेत दीगर मरकजी अंजुमन ताजरान के अहदेदारान ने शिरकत की। इजलास में शहर में सफाई और तजावुज़ात के हवाले से मामला ज़ेरे बहस आए और मरकजी अंजुमन ताजरान की तरफ से चीफ ऑफिसर बल्दिया अब्तसामुल हक को मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई, जिस पर चीफ ऑफिसर बल्दिया ने अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों को यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि शहर में सफाई और तजावुज़ात के हवाले से कोई कमी पेशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम सबको अमली तौर पर शहर के मसाइल के हल के लिए मेहनत करने की जरूरत है और ताजर भाइयों के साथ किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। लिया के इलाके करोला लीसन के नशेबी इलाकों में दरियाई कटाव से मुतासरा खानदानों में इमदादी सामान तकसीम किया गया। खुजर हबीब खान की रिपोर्ट। करोड़लाल ईसन के नशेबी इलाकों में दरियाई कटाव से मुतासरा 26 खानदानों में हुकूमत पंजाब की जानिब से इमदादी सामान तकसीम किया गया। इमदादी सामान में चारपाया, टेंट और एशिया खुर्दनोश की चीजें शामिल हैं। दरियाई कटाव मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द सिपर बंद तामीर करके आवाम को नुकसान से बचाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ खिजर हबीब खान, सच टीवी, करोड़लाल ईसन। कसूर में लॉकडाउन के दौरान चाइल्ड लेबर में इजाफा होने लगा। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बच्चों से मुशक्कत तलब काम लिया जा रहा है। चौधरी वसीम की रिपोर्ट।
کہیں گاڑیوں کے ٹائروں میں ہوا بھرتے بچے تو کہیں ورکشاپ پر مشقت طلب کام کرتے یہ معصوم کھیلنے اور پڑھنے کی عمر میں قصور اور گرد و نواح میں بچوں سے مزدوری کروانے کا سلسلہ جاری ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بچوں کو تحفظ فراہم کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، لیکن قصور میں سر عام چائلڈ لیبر پر انتظامیہ کی خاموشی مایوس کن ہے۔ ہر سال گورنمنٹ آتی ہیں، پالیسیز بناتی ہیں چائلڈ لیبر کے حوالے سے کہ ان کو اسکول میں بھیجا جائے، ان کو اچھی ایجوکیشن دی جائے، مگر کوئی بھی اس پہ قابو نہیں پا سکا۔ پالیسیز بنانے سے کیا ہو جائے گا جب تک ہم اس پہ امپلیمنٹ نہیں کروائیں گے۔ امپلیمنٹ کروانے کے لیے کسی ادارے کو کام کرنا پڑے گا۔ اوپر بیٹھے لوگ تو صرف پالیسی بنا سکتے ہیں، قانون سازی کر سکتے ہیں، مگر اس پہ عمل کرنے کے لیے نیچے ایک ٹیم کی ضرورت ہے۔ ادھر انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں چائلڈ لیبر کے خلاف سخت قوانین تو موجود ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ہمارے جو غریب لوگ ہیں، ایک آدمی جو ہے وہ 15,000 پہ کام کر رہا ہے یا 12,000 پہ کام کر رہا ہے، اس کے 6 بچے ہیں، تو وہ 6 بچوں کا راشن 12,000 میں پورا نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ 2 لاکھ روپے میں میرا گزارا نہیں ہوتا، جبکہ اس کو تمام چیزیں بلا معاوضہ مل رہی ہیں، تو ایک غریب آدمی 6 بچوں کے ساتھ اس کے ماں باپ بھی اگر رہتے ہوں تو راشن کا بل بنائے 12,000 سے زیادہ تو صرف ڈرائی راشن ہو جائے گا، تو وہ مجبور ہے اپنے بچوں کو مزدوری کروانے پر۔ دکانوں پہ، ورکشاپوں پہ چھوٹے چھوٹے بچے چائلڈ لیبر کرتے آپ کو نظر آ رہے ہیں، مگر ہمارے یہ حکومتی ادارے کہاں ہیں؟ یہ پہلے بھی کہیں آپ کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ ان کی کارروائی یا ان کی کارکردگی آپ کو صفر نظر آئے گی، لیکن اس وقت جو کرونا وائرس کے باعث سچویشن بنی ہوئی ہے، بچے اسکول نہیں جا رہے اور والدین معاشی مسائل کا شکار ہیں، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجتے ہیں چائلڈ لیبر کے لیے، لیکن حکومت ایسے اقدامات کر رہی ہے، جو ہمارے ادارے ہیں یہ فعال ہوں، یہ کام کریں۔ حکومت کو چاہیے کہ مشقت طلب کام کرنے پر مجبور بچوں کی کفالت کرے اور ان کے والدین کو روزگار کی سہولت فراہم کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری وسیم، سچ نیوز، قصور۔